Okay, I'll start. See, last lecture में we have discussed what discovery of. We started with discovery of subatomic particles, that is electrons, fundamental particles, electrons, protons, and neutrons. Uh, Three fundamental particles, electron, proton, and neutrons were discovered. We started chapter with this. Then we started seeing different models of atom which were proposed in different times. First was proposed by J.J. Thomson. We have discussed in the last class. Then next model is Rutherford's model. Rutherford model. Let's discuss this. Rutherford model. We started with a experiment, Giger-Marsden experiment. Giger and Marsden experiment. What was that? A famous alpha scattering experiment. If you recall, last class में हमने पढ़ा था, a source of radioactive substance was taken, which was radium, which emitted alpha particle. Then collimated beam of alpha particle was produced by passing it through, accelerating and passing it through a slit, and then it was made to bombard on gold foil. There was a thin gold foil, few microns. There was a thin gold foil of thickness few microns, 0.4 micrometer, and this gold foil was bombarded with fast moving alpha particles, and those alpha particles were collected on a screen. There was a collector, had a zinc sulfide painted on it. So these alpha particles which were scattered by this gold foil were collected on this screen, right? So wherever these alpha particles fall, produces some scintillations, or even there's a counter attached to it. We can count how many alpha particles are received at any place per unit time. Detailed experiment is there in physics in 12th. Here what you have to remember is only few observations. So what were the observations of Giger-Marsden experiment? These are three important observations which you have to note. First was almost all, that is 99.9% alpha particles went straight. That is without any significant deflection. What? 99.9% alpha particles went straight without any significant deflection. Very few, not numbers, number is not mentioned, very few deflected by small amount. One, very few deflected by small amount, right? Not percentage and all. If you read different books, you will see different numbers and different percentages are mentioned. But all I can say is very few deflected by a small amount. There is no such number. And again, almost negligible. A number is used in some of the textbooks, 1 in 20,000. Around 1 in 20,000 deflected by an angle more than 90 degree. An angle more than 90 degree. Kind of they bounced back, right? So kind of they bounced back. Now question is, why these observations? What can you conclude from these observations? I'm seeing a gold foil, though it is thin, but it looks opaque, right?
it's not transparent. I don't see holes in it, right? So when alpha particles are what? Alpha particles are helium nucleus. When I say alpha particles, what are they? They are helium nucleus. There's particles, mass of which is 4 times, charge on it is plus 2 times charge on electron, and mass is 4 times mass of hydrogen atom or hydrogen nucleus, nearly 4 AMUs. So mass is 4 AMUs and charge is plus 2 electron. So that is what we say is alpha particle. So when gold foil was bombarded with fast moving alpha particles, I don't expect them to pass as it is, right? Pass through that foil undeflected, right? But what was observed, that most of the alpha particles, 99.9%, almost all the alpha particles went straight without any deflection. Very few deflected by small amount. When I say undeflected, it really means undeflected. They went straight. This was a gold foil. They did not show any deflection from their path. They went exactly straight. They went straight without a zero deflection, without any deflection. Very few had shown some deflection. Some of them deviated from its path, right? They were moving in this path, they deviated a little bit, right? So some of them deviated by some angle, and 1 in 20,000 in terms of percentage, if I talk, it is 0.005%. So 0.005% deflected by an angle more than 90 degrees, something like this. Yes. Deflected by an angle more than 90 degree. So these are 3 observations of Giger-Marsden experiment or famous alpha scattering experiment. Now, let's see what conclusion Rutherford has drawn from these observations. So what Rutherford suggested, before this model, J.J. Thomson has given a model in which atom was a positively charged solid sphere in which, so since most of alpha particles went straight, there must be free space in atom, and free space accounts for most of space occupied by atom. See, अभी आप बोल रहे हो अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए, राइट? अल्फा पार्टिकल्स वेंट विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन. ऐसे कैसे कोई सीधा निकल जाएगा? स्ट्रेट निकल गया, दैट मींस व्हाट? देयर मस्ट बी फ्री स्पेस इनसाइड एन एटम. सो आप जिसको एक एटम कह रहे हो, दिस इज सपोज एन एटम, राइट? तो जिस रीजन को आप एटम कह रहे हो, जो स्पेस को आप एटम नाम दे रहे हो, दैट स्पेस हैज लॉट ऑफ फ्री स्पेस. दैट रीजन हैज लॉट ऑफ फ्री स्पेस. यहाँ पे कुछ होना ही नहीं चाहिए, राइट? सो एंड ये जो फ्री स्पेस है, ये थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए. सिंस 99.9% भाई रैंडमली, ऐसा तो नहीं है कि एक पतली सी जज जा रही थी, रैंडमली आप अल्फा पार्टिकल्स निकाल रहे हो. तो दीज अल्फा पार्टिकल्स वर पासिंग थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन गोल्ड फॉइल. तो सब स्ट्रेट गया, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फ्री. मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इज एक्चुअली फ्री स्पेस. नहीं आ रहा है समझो मैं क्या बोल रहा हूं? सी conclusion क्या निकालोगे आप? Most of the alpha particles went straight without showing any deflection. How is it possible? This is only possible if most of the space occupied by the atom is a free space. Vacuum होना चाहिए, वहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, right? So I don't know, अगर आपको पहली बार पढ़ रहे हो तो ये आपको सरप्राइजिंग तो लगना चाहिए कि जो चीज आप सॉलिड समझ रहे थे वहां पे फ्री स्पेस है, वैक्यूम, राइट? एंड उस वैक्यूम का अंदाजा लगाने के लिए 2-4 क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो उससे आपको अंदाजा लगेगा कितना फ्री स्पेस है वहां पर. देन तो ये समझा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या निकाला हमने? सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट
straight without showing any deflection, then most of the space occupied by the atom must be a free space, right? Then second, alpha particle is positively charged. Alpha particle carries positive charge, right? Hence is repelled by positive charge. Alpha particle carries positive charge, hence is repelled by positive charge. Electrical nature of matter was known by then, and positive charge repels positive charge was known by then, right? So alpha particles carry one positive charge and hence is repelled by positive charge. So small deflection, जो थोड़ा सा deflection आ रहा था ना, small deflection should be due to repulsion from positive charge. ये जो रिपल्शन हो रहा था, सॉरी, ये जो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ रहा था, वेरी फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल अमाउंट, स्मॉल एंगल से जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अल्फा पार्टिकल्स. सो ये डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा होगा? ड्यू टू रिपल्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. एंड सिंस very few alpha particles show deflection, positive charge must be concentrated in small region. ये देखो कन्विंसिंग लग रहा है आपको? ये कंक्लूजन, सी सेकेंड कंक्लूजन आपको कन्विंसिंग लग रहा है? यस सर. ओके, सी तो फर्स्ट कंक्लूजन था सीधे सीधे जा रहा है, दैट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फ्री. सेकेंड कंक्लूजन इज थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, राइट? ये कुछ अल्फा पार्टिकल्स से थोड़ा सा स्लाइट डिफ्लेक्शन था, तो ये स्लाइट डिफ्लेक्शन है वो भी बहुत कम के साथ ही ऐसा हुआ. दैट मींस व्हाट? बहुत बड़े रीजन में कहीं छोटे से जगह पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट? बिकॉज अगर ज्यादा डिफ्लेक्ट होते थे तो पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बड़ा होता था. बट दिस डिफ्लेक्शन इज शोन बाय वेरी फ्यू alpha particles. That means this positive charge is located in a very small region, right? Now finally, the alpha particles which bounce back or deflect by an angle more than 90 degree. ये सबसे important conclusion जो निकाला हमने. Alpha particles which bounce back or deflect by an angle greater than 90 degree must be colliding with heavy mass. Yeah, heavy thing. See, अभी एक एटम के अंदर क्या क्या है? जब ये रदरफोर्ड मॉडल आया था तभी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वर नोन, राइट? न्यूट्रॉन्स वर नॉट नोन बाय, मतलब जब ये रदरफोर्ड ने मॉडल अपना प्रपोज किया था तभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, या हो भी होगी तो लेट अस कीप इट असाइड. सो व्हाट वी नो इज, एक एटम के अंदर व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग, ये एटम है, सपोज देयर इज अ रीजन टू व्हिच वी से इज एटम. तो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अभी अंदर क्या है मुझे तो मालूम नहीं है, उनको भी मालूम नहीं था. इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ प्रोटॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे, राइट? तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? ऑब्वियसली न्यूट्रॉन वाज नोन टिल दैट टाइम. चलो मान लेते हैं न्यूट्रॉन भी आपको पता है. अब अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में कितना हैवी है? If you compare an alpha particle with proton, the mass of proton is how many times that of mass of alpha particle is how many times that of proton? Mass of alpha particle is nearly 4 times that of proton, right?
अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स मास ऑफ क्या, एक प्रोटॉन है। तो ये अगर बाउंस बैक हो रहा है, अगर बहुत फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन से टकरा के तो नहीं हो सकता, एक न्यूट्रॉन से टकरा के भी नहीं हो सकता, एक सिंगल प्रोटॉन से टकरा के भी नहीं हो सकता। इमेजिन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट बहुत हैवी है, ठीक है, 4 टाइम्स हैवी है, एक है 4 kg का और दूसरा है 1 kg का। ऐसा हो सकता है क्या कि 4 kg मास ऑब्जेक्ट है, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट इज मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, इट्स मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी, एंड सामने 1 kg का ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि इसे टकरा के ऐसा वापस आ जाए? आपको ऐसा लगता है? फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसमें कोलिजन हम पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहां पे कैलकुलेशन करा के दिखा दूंगा, बट बिफोर दैट, डू यू बिलीव कि a 4 kg object which is moving at a very high velocity strikes with a 1 kg object and will bounce back? नहीं सर, नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। टूट सकता है वो, 1 kg वाला टूट सकता है और 4 kg वाले में क्रैक भी आ सकता है। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाता बेटा, ये तोड़ फोड़ की बात ना कर। इट्स जस्ट अबाउट कोलिजन। न्यूट्रॉन टूटता नहीं है, प्रोटॉन टूटता नहीं है, ठीक है। तो सर वो इलेक्ट्रॉन भी 4 टूटता नहीं kg वाले पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा क्या? है बेटा, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। तू जिसको फ्रिक्शन कहता है ना, वो अलग ही चीज है। फ्रिक्शन तो जब, मतलब कैसे समझाओ, जब दो सरफेसेस रब होंगे तब कुछ फ्रिक्शन की बात होगी। यहाँ तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्यूम है, वहां कुछ है ही नहीं। तो वहां पे जब कोई सब्सटेंस ही नहीं होगा तो फ्रिक्शन कहाँ से आएगा? ओके। एनीवेज, फ्रिक्शन तो बिल्कुल दूर दूर तक वहां पे कुछ नहीं होता। सी, मेरा कहने का मतलब ये, अल्फा पार्टिकल विच बाउंसेस बैक और डिफ्लेक्ट्स बाय एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री मस्ट बी कोलाइडिंग विद सम हेवी थिंग। ये आपको फील करना है। ऐसे ही अल्फा पार्टिकल खुद 4 यूनिट्स का है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक एटम के अंदर क्या मिलेगा मुझे, आई फेस सम इलेक्ट्रॉन्स, आई फेस सम प्रोटॉन, चलो न्यूट्रॉन भी मैं मान लेता हूँ, उस जमाने में पता नहीं था न्यूट्रॉन का, बट फिर भी मान लेता है न्यूट्रॉन्स भी हो। तो ये दोनों तीनों चीजें जो है अल्फा पार्टिकल से तो बहुत लाइट है। तो जब अल्फा पार्टिकल से लाइट है, तो उस अल्फा पार्टिकल से टकरा के रिटर्न कैसे आएगा? मतलब ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीज है किसी ना किसी बहुत हैवी चीज से टकरा रही है, नहीं? सो मस्ट बी कोलाइडिंग विद सम हैवी थिंग, एंड दैट हैवी थिंग जो है, सर शेल हो सकता है क्या उसका? नहीं बेटा, मैं बता रहा हूँ ना, वही वो न्यूक्लियस बनने वाला है ना, बता। एंड द मास विथ विच अल्फा पार्टिकल is colliding must occupy very small space of atom. Yeah. Alpha particle which bounces back or deflects by an angle greater than 90 degree must be colliding with some heavy thing. And the mass with which alpha particle is colliding must occupy very small space of the atom. वो एक एटम के अंदर का बहुत छोटा सा मास ऑक्यूपाई करना चाहिए। So I believe these three observations are, sorry, the conclusions are convincing to you also. पहले हमने देखा गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट या अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जहां पे सारे अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सीधे चले गए, few of them deflected by small amount, and very few, 1 in 20,000 bounces back or deflects by an angle more than 90 degree. ऐसा कुछ हो रहा था, नहीं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके हेल्प से उन्होंने ये 3 कंक्लूजन निकाले। क्या आपको ये कंक्लूजन लग रहे हैं जेन्युइन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस शुड बी फ्री? हाँ सर। रिपल्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन। ये पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब वो किसकी वजह से होना चाहिए? वो डिफ्लेक्शन रिपल्शन की वजह से होना चाहिए। और बहुत कम ही ऐसा हो रहा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी छोटे से रीजन में लोकेटेड है। जो बाउंस बैक हो रहे हैं वो ऐसे तो बाउंस बैक नहीं होंगे, वो किसी हैवी चीज से जाके टकराएंगे तो ही होगा। तो पूरा का पूरा मास जो है हैवी चीज है कुछ, तो जो बहुत छोटे से रीजन को ऑक्यूपाई करती है। ओके, तो सर यूजिंग, हाँ सर एक चीज पूछूं सर, ये मतलब इसमें जो फिजिक्स के लॉज रहते हैं ये सब, जब अल्फा पार्टिकल उससे टकराया शेल से और बाउंस बैक होके आया, तो यहाँ पे सारे फिजिक्स के लॉज तो अप्लाई होते ही है ना?
ऑब्वियसली होता है बेटा, और ये चैप्टर हो आपको फिजिक्स में फिर हाँ से पढ़ने मिलेगा 12th में। तो तो वहां सर पे सर सर मुझे एक चीज पूछना है कि जब एक बॉल दूसरे बॉल से सेम मास वाली दोनों बॉल अगर टकराती हैं तो तब भी तो वो बाउंस बैक हो सकती है ना। नहीं बेटा, एक बॉल, अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में इसी साल कि इफ अ मास m collides with another mass m, this being at rest, और ये आ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। हाँ इफ दे अंडरगो अ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होता है, ये फर्स्ट वाला बॉल रुक जाएगा, ठीक है, और ये दूसरा तो वाला वो बॉल दूसरे वाले में वेलोसिटी v से वो चल, चला जाएगा। हाँ सेम वेलोसिटी ट्रांसफर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। हाँ लेकिन अगर पहला ऑब्जेक्ट फोर टाइम्स मास m है, 4m है, और ये m है, ये रेस्ट पे है, कभी भी ये बाउंस बैक नहीं हो सकता बेटा, ये कभी बाउंस बैक नहीं होगा। आपको सारे कैलकुलेशंस में दिखा दूंगा, फिजिक्स में एक चैप्टर है कोलिजन वाला टॉपिक है, तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि अगर 4 टाइम्स मास में लेके चल रहा हूं, पहला वाला m मास है और दूसरा वाला 4m मास है, अरे ये बच्चा भी कोई भी समझ सकता है यार, एक हैवी ऑब्जेक्ट से तो एक लाइट ऑब्जेक्ट को मार 4m, एंड एक बार मैं m मास इस पे मारूं तो ये रिटर्न आने की उम्मीद तो मैं कर हाँ सकता हूँ, बट 4m को m में मारूं और 4m वापस आ जाए ऐसा, जी सर। तो ये जी पॉसिबल सर। नहीं था। हाँ, तो यही फिजिक्स के लॉज ही तो अप्लाई करके उन्होंने कंक्लूजन निकाले ना सर, कि भाई 4m मास है, मैं मार रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अंदर एटम है, एटम है, और एटम के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जाके अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता वापस, मतलब किसी न किसी हैवी चीज से टकरा है, राइट। तो अंदर कहीं पे तो एक बड़ा हैवी सा कुछ रखा होगा, उससे जाके टकरा रहा है, सर एंड क्या फिर चीज वो है रिटर्न। लेकिन ऐसा क्या चीज रेजिस्ट करता है वो बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट से टकराने पे बाउंस बैक करने के लिए, ऐसा क्या चीज रेजिस्ट करता है। मतलब कोई भी मास होगा बेटा, एक हैवी मास होगा, उससे अगर लाइट वाला ऑब्जेक्ट टकराएगा तो वो बाउंस बैक होगा। अच्छा क्या, मैं समझा नहीं, डाउट क्या है? सर मेरा डाउट ये है कि ऐसी कौन हाँ, सी चीज है जिसके वजह से वो हैवी ऑब्जेक्ट लाइट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस नहीं आ पाता। तो वो तो न्यूक्लियस है ना बेटा, बता रहा हूँ ना अभी। So on the basis of these conclusion, he has drawn a picture. So Rutherford's model of atom. On the basis of these three conclusions which I have written, Rutherford has made a picture of an atom. Let's see what is that picture. So Rutherford's model of atom. He said, ये है पहला part, nucleus. He said, okay, all positive charge is located at in a small region, and also entire mass is located in small region. Hmm. He named the region as known as nucleus. Size of nucleus is very small as compared to that of atom. समझो ना? ऑल पॉजिटिव चार्ज में आपको प्रॉब्लम क्या था, पॉजिटिव चार्ज बहुत थोड़े से रीजन में होना चाहिए, हाँ ठीक है, एंड वो बहुत एक छोटी सी चीज, बहुत हैवी चीज से टकरा रहा है, वो हैवी चीज बहुत कम मास ऑक्यूपाई कर रही है, तो उसने क्या बोला, ये अगर एटम है आपका, दिस इज सपोज एन एटम, तो एक छोटा सा पार्ट, पूरा का पूरा मास एक छोटे से रीजन में ऑक्यूपाइड लोकेटेड है, ये न्यूक्लियस नाम है उसने, पूरा मास, एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज and positive charge is located in it. लग रहा है लॉजिकल?
हाँ सर। See, यस सर। आप एज्यूम हाँ कर लो ना सर। कि जो पूरा का पूरा मास जिससे जो हैवी चीज जिससे टकरा के वो बाउंस बैक हो रहा था, वो एक्चुअली उसने नेम किया उसको, ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियस। ही सेड दैट इज न्यूक्लियस। एंड ये न्यूक्लियस है जिससे टकरा के वो बाउंस बैक हो रहा सर है। एंड इट इज, हाँ सर ये न्यूक्लियस मतलब एक तरीके से हम लोग ये भी कह सकते कि वो अल्फा पार्टिकल के वेट का होगा ना, कि उससे ज्यादा भी हो सकता है। और उससे ज्यादा भी होगा। एंड ये जो गोल्ड का एक एटम का न्यूक्लियस है दैट इज नियरली 197 AMUs, है? तो उससे कितना टाइम्स ज्यादा है, हाँ। इसलिए वो बाउंस बैक हुआ ना। 197 मतलब नियरली कितने टाइम्स ज्यादा होगा, 49 टाइम्स ज्यादा हैवी हाँ। उससे। अच्छा। So हम्म। nucleus was nearly 49 times heavier than alpha particle, so उससे टकरा के वो वापस आ रहा था। बात सिर्फ इतनी थी कि वो 197 जो AMUs है ना, किसी को पिक्चर नहीं दिख रहा था कि अंदर 197 कैसा है, ये फैला हुआ है या क्या। तो अब ये पूरा का पूरा जो मास है वो एक छोटे से रीजन में लोकेटेड है। तो वो जो चीज बनी, जो छोटी सी चीज है जिसको न्यूक्लियस नाम दिया, वो अचानक वो पूरा मास वो उसके पास ही है ना, राइट। और पॉजिटिव चार्ज भी उसके अंदर ही चला गया एज पर इट, एज पर रदरफोर्ड मॉडल पूरा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है और मास भी उसमें। तो इसीलिए तो जो यहाँ से जा रहा है सीधा चला गया, सीधा चला तो गया। सर फिर वो Isn't it? न्यूक्लियस इसलिए न्यूक्लियस बाकी सारी चीजों को अट्रैक्ट करता होगा ना, जैसे कि मतलब अपना सब क्या सब बोलते। मैं बता रहा हूँ, वो आगे जानता ना, आगे का पॉइंट बता रहा हूँ। पहले ये जो लिखा वो तुझे लॉजिकल लग रहा है क्या? हाँ जी सर, लग रहा है ना। हाँ बस, हाँ हाँ, तो आगे का बता रहा था। सो न्यूक्लियस इज व्हाट, न्यूक्लियस उनके रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस है वो रीजन जिसमें पूरा मास होना चाहिए एंड एंटायर पॉजिटिव चार्ज शुड बी लोकेटेड है। एंड दैट रीजन शुड बी रीजन मतलब ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज व्हेन कंपेयर्ड विद एटम। ठीक है। इनफैक्ट अगर आप करंट इंफॉर्मेशन है, अगर एक्सरेज के हेल्प से हमने साइज एस्टिमेट करके देखा था, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर आप देखोगे ना, वो कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, एंड साइज ऑफ एन एटम इज ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁻10 मीटर। ये कैलकुलेशंस हैं आगे भी, बट मैं आपको जस्ट एक चीज फील कराने के लिए क्या, कि न्यूक्लियस एटम से कंपैरिजन में कितना छोटा है वो आप देखो। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस is 10⁻⁻15 मीटर and the size of the atom is of the order 10⁻⁻10 मीटर। मतलब न्यूक्लियस या एटम is nearly 1 lakh times larger than nucleus in radius, or 10⁻15 times than nucleus in volume. I'll repeat. Size of nucleus is around 10⁻⁻15 meter and size of atom is nearly 10⁻⁻10 meter. So atom is nearly 1 lakh times larger than nucleus in radius, or 10⁻15 times than nucleus in volume, right? मतलब अगर आपको कंपेयर कराने की बात कहूं मैं, so let us assume समझो ये कौन सा ये टेनिस बॉल है, लेट अस अज्यूम टेनिस बॉल, नहीं। सो एक टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल का रेडियस आप कितना इमेजिन करोगे? ये टेनिस बॉल इससे छोटा ही होता है ना। सो दिस इज हाउ मच, 7 सेंटीमीटर। लेट अस अज्यूम 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ठीक है, रेडियस। तो 4 सेंटीमीटर का इतना इससे बड़ा ही होता है। चलो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर रेडियस का एक छोटा सा क्रेजी बॉल आता है ना, क्रेजी बॉल का रेडियस 1 सेंटीमीटर होता है। वो क्रेजी बॉल देख लो आप, टेनिस बॉल हटा देते हैं, क्रेजी बॉल देख, क्रेजी बॉल का रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का क्रेजी बॉल है और इससे 1 लाख टाइम्स बड़ा है, दैट मीन्स 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर का एक स्फीयर ले लो, राइट, या एक ग्राउंड ले लो जिसका रेडियस 1 किलोमीटर है। इमेजिन करो वो ग्राउंड और उसके सेंटर पे छोटा सा एक क्रेजी बॉल रखा हुआ है। ये मन में सोचोगे ना तो तुमको फीलिंग आएगी, हाँ
वाकई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा साइज का एटम है, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो सर मैं वही तो बोल वन रहा था से कि अगर ये इतना बड़ा है तो वो हमेशा उसको मतलब एटम को अगर जोड़ के रखने का काम तो फिर न्यूक्लियस ही करता होगा ना, क्योंकि उसका भी तो ग्रेविटेशनल पुल रहता होगा ना वो अगर इलेक्ट्रॉन से तो। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन छोड़ दे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो अभी मैं आ रहा हूँ बताता हूँ ना, उसमें क्यों भाग रहा है तू? आगे की चीज छोड़ दे, ये चीज जो बता रहा हूँ वो तुझे कन्विंसिंग लग रहा है, ठीक, इसमें कोई डाउट है तो बता। वो मैं बता रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन को कैसे खींच के रखता है, वो क्या करता है। दिस इज कंपैरिजन, आपको इमेजिन करने के लिए कि 1 सेंटीमीटर का क्रेजी बॉल है रेडियस का, राइट, एंड 1 किलोमीटर का स्फीयर ले लो, तो स्फीयर तो आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, बट लेट अस इमेजिन अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ द रेडियस 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर डायमीटर का, उसके सेंटर पे क्रेजी बॉल रखा हुआ है। ऐसा कंपैरिजन होता है इसका न्यूक्लियस और पूरे एटम, राइट? ओके, नाउ this nucleus should contain the masses of what? ये रुदरफोर्ड को ये कैसे पता चला कि वो न्यूक्लियस सेंटर में है? हाँ वही पूछ रहा हूँ, ये है ना, सी, हाँ सिमेट्री है। अभी ये चीज भी आपको सेकंड जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, वो देख के आपको समझ में आएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में समझ में आएगा कि सेंटर पे क्यों है, हाँ? एक तो पहला सिमेट्री समझ लो आप, सिमेट्री होती है नेचर में देयर इज सिमेट्री, पहली चीज। दूसरी चीज है ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, उसको देख के आपको समझ में आएगा। तो अभी सेकंड जब पॉइंट लिखूंगा ना, तभी आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि हाउ ही कंक्लूडेड दैट इट इज एन सेंटर, एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो पहले तो ये बता दूं आपको कि न्यूक्लियस में क्या होगा ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल, ये पहले से पता था। कैसे पता था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। नेग्लिजिबल एज compared to protons, though neutron was not known till that time, but अभी तो पता है, तो मैं न्यूट्रॉन भी इसमें इंक्लूड करता हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। therefore nucleus contains protons and neutrons, ठीक है? तो इस चीज का कंफर्मेशन सबको मिल गया। इसमें कोई चीज अगर आपको कन्विंसिंग नहीं लग रही है, ये जो स्टेटमेंट लिखा मैंने, कौन सा, न्यूक्लियस के बारे में जो लिखा, इफ इट इज नॉट कन्विंसिंग टू यू लेट मी नो। बाकी जो सिमेट्री है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आ रहे अंदर, खींच क्यों नहीं रहा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। So first part is nucleus. Now, next is extra nuclear part. Extra nuclear part. So nucleus के बाहर क्या है? Right? So one thing is sure कि atom has space occupied by atom, space occupied by atom is much more than nucleus. इतना तो श्योर है, राइट? हाँ सर। इतना श्योर है कि स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इज मच मोर देन न्यूक्लियस। ये भी किसी किसी को लगता है कैसे, ऐसे कैसे, जबरदस्ती। तो मेरे सामने एक ओपेक शीट है, ठीक है? अब ओपेक शीट है जिसमें मास यहां पे है, यहां लोकेटेड है, यहां कॉन्सेंट्रेटेड, यहां कॉन्सेंट्रेटेड, बट फिर भी कुछ तो है जो साइज को पूरा कर रहा है। मतलब मास बहुत छोटी सी जगह पे है, बहुत छोटी सी जगह पे, तो कुछ तो है ना, लेकिन उसके बाहर भी नहीं, तो ये फिर पास में क्यों नहीं है? मतलब इनके बीच में क्या, कुछ तो होना चाहिए ना। शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि वो मेरे सामने एक सॉलिड सी शीट दिख रही है, आई कैन सी अ गोल्ड फॉइल, राइट, विच इज ओपेक। उसमें कम से कम नहीं तो 10-20 एटम्स की लेयर होंगी, उससे ज्यादा ही होंगी।
and I cannot see through it. अच्छा, ये भी पता चल गया मुझे कि बहुत थोड़ी सी जगह पे मास है, तो आजू बाजू में वैक्यूम पूरा होता, अगर इफ पूरा वैक्यूम मतलब कंप्लीट वैक्यूम वाज देयर, तो आई कुड हैव सीन, आई कैन सी थ्रू इट, नहीं, या उससे एयर पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ तो होना चाहिए था ना। बट एक गोल्ड फॉइल दिख रहा है मुझे, आई कैन नॉट सी इट, इट्स ओपेक शीट, थोड़े थोड़े पोर्शन में मास है, देख नहीं पा रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि यही एटम है जिसमें पूरा मास है, एटम बड़ा होगा, उसके बीच में पूरा मास है, हैवी वाली चीज सेंटर पे। तो बाहर कौन सी चीज है? बाहर हल्की वाली चीज है। हल्की चीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नेग्लिजिबल मास। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है दैट इज नेग्लिजिबल। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सी साइज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम इज मच मोर देन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ने तो अकोमोडेट कर लिया किसको? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को, राइट। क्वेश्चन रह गया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन है? तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इसमें है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके आजू बाजू एक्स्ट्रा, ये एटम बड़ा है, सर एटम बहुत बड़ा। हाँ, सर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो रहते हैं वो समझा, लेकिन हर चीज मतलब हर चीज किसी ना किसी से बनी रहती है ना, तो उसका मटेरियल क्या होता होगा उसमें? किस चीज का? मतलब जिस देख चीज बेटा, में हम इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट एकदम करते हैं। एकदम 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 तूने बहुत उल्टा ही बात सोच ली है। बहुत ध्यान से सुनना, ये तुम्हारे डाउट है। हम सोच रहे थे कि मैटर किसका बना है। हम क्या सोच रहे थे? मैटर किसका बना? मैटर किसका? डेल्टन ने खोजते खोजते बोला मैटर एटम से बना है। फिर लोगों ने कहा एटम किससे बना? बोला एटम किसी हाँ से नहीं बना, एटम इज बिल्डिंग ब्लॉक। इट्स समथिंग लाइक, आप बोलते हो बिल्डिंग किससे बनी है? ब्रिक से। फिर हाँ लोग पूछते हैं ब्रिक किससे बना, तो आपके पास जवाब है मिट्टी से बना है। मिट्टी से। फिर पूछते हैं मिट्टी किससे बनी हुई है, तो आप बोलते हो एल्यूमिना है, फिर पत्थर उसमें से। सिलिका है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर वो किससे बना है, तो भी आपके पास जवाब है। तोड़ते तोड़ते मैटर को लोग कहां तक पहुंचे थे? एटम तक। कौन लेके गया? डाल्टन लेके गया। डाल्टन। एटम को तोड़ते तोड़ते हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनाया। और हाँ आज की डेट में आपके सिलेबस के हिसाब से ये किसी चीज से नहीं बने हैं, ये यही है, सारी चीजें इनसे बनी है। तो सर अगर हमारे ठीक है। सिलेबस के हिसाब से कि अभी तक इंसानों ने ढूंढा ही नहीं है। अरे बहुत कुछ ढूंढ लिया बेटा। 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स पढ़ते पढ़ते 12th के एंड तक आप सुन लोगे। आपने अभी भी शायद सुन रखे होंगे, पॉजिट्रॉन सुना होगा, क्वार्क सुना होगा, मीजॉन सुना होगा, लेप्टॉन सुना होगा। बहुत सारे हाँ पार्टिकल्स वो हैं, सुना था। न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, तो बहुत सारे पार्टिकल्स। वो छोड़ दो, उतने तो मुझे भी नहीं पता है, राइट। अपने सिलेबस के हिसाब से एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मत सोचो आप कि प्रोटॉन किससे बना है, वो बियॉन्ड मेरे लेवल, मतलब जान दो, वो अपने लेवल, अपने नॉलेज और प्रोटॉन अपने तो स्कोप में पॉजिटिव बात। चार्जेस है ना? बेटा प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्रोटॉन एक पार्टिकल है। हाँ प्रोटॉन एक पार्टिकल है। प्रोटॉन इज अ पार्टिकल। पार्टिकल। इसके ऊपर भगवान जाने कैसे इसके ऊपर कुछ चीज दी है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं। इसी को भगवान ने कुछ मास भी दिया हुआ है, इसी को भगवान ने मैग्नेटिज्म भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है इसी। तो ये अच्छा उसकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, और सारी चीजें, पूरा यूनिवर्स इन्हीं से जोड़ जोड़ के बना हुआ है। समझा? अच्छा। तो हाँ ये सर। हाँ, ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन सीमेंट से बना है या स्टील से बना, नहीं, सारी ये चीजें कौन इलेक्ट्रॉन सोचेगा? से बनी है। अरे एक बात है, तो मतलब आप ये मत सोचो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बने, सारी चीजें इनसे बनी है। अब कहीं ना कहीं तो जाके आपको रुकना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं आपको जाके रुकना पड़ेगा। तो आपको अपने नॉलेज को यहाँ पे रोकना है। ऑब्वियसली इसके नीचे लोग जा चुके हैं, बट हमारे सिलेबस के हिसाब से मुझे यहाँ पर रुक जाना है, और मुझे ये मान के चलना है। कोई पूछता है ना कि इस पेन का मास क्यों है, मैं पूछूं इसका पेन का मास क्या है, तो आप सोचोगे क्या है? दिस इज मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो कार्बन के बहुत सारे एटम्स हैं, तो एक एक एटम का जो मास है वो मिला के इसका मास है। मैं पूछूं और कार्बन के एटम का मास क्यों, तो आप बोलोगे सर एक एटम है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो उन सबके मास मिला के एक एटम का मास है। फिर मैं पूछूंगा एक प्रोटॉन का मास की, तो आप बोलोगे
मास इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन, वहां पे जाके कहानी आपकी रुक जानी है, उसके आगे आपको नहीं देखना है। हाँ, ठीक है, थोड़ा और पढ़ लिख लो, फिर उसके बाद सोचते बैठो, राइट। तो और भी जब हायर सिलेबस में जाओगे आप, तो आपको और अंदर देखने चीजें मिल जाएंगी, राइट। बट फॉर नाउ सारी चीजें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन किससे बना है? वो इनहेरिटेड है, भगवान ने इलेक्ट्रॉन दिया है, बनाया है, उसको कुछ चीज दी है जिसको नाम दिया हमने मास, ठीक है, ओके।